Welcome to this wonderful evening. Today we are talking about classical music in our ongoing series called Know Your Music. और Know Your Music इस हैशटैग के तहत हम लोगों ने जो है मूवमेंट शुरू किया आईपीआरएस के मंच से। इसका एक ही टारगेट है, इसका एक ही एम है, बहुत ही सिंपल, कि आज हमारे लिए डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो गया है कि क्रिएटर्स कौन है और कंज्यूमर्स कौन है। बिकॉज जितने क्रिएटर बढ़ते जा रहे हैं उतने ही कंज्यूमर बढ़ते हुए, जो रेखा होती है, एक जो there's a line between the creators and the consumers that is just blurring now. And today you are a consumer, today you are a listener, tomorrow you just might start making your own music. So it's very important for us to all educate ourselves, to learn good music, to know about music, to have exposure to as many good things as we can before we actually start putting out content in the market. So इसी खूबी और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए this Know Your Music is an initiative by IPRS, the Indian Performing Rights Society, where we try to bridge the gap between the creators and the consumers. So I hope you all have joined in today, and you will ask all your friends and all the people who are interested in music to join us again more for next time. The previous first installment of the same series we had done on folk music, because folk music से तो सारा म्यूजिक आया है। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल म्यूजिक की। नहीं नहीं, डर के घबरा के बैठने की कोई जरूरत नहीं। क्लासिकल म्यूजिक इज एक्सट्रीमली accessible, and it is super fun, and it is super engaging, especially with the person that I'm going to talk about today, Purvayan Chatterjee ji. He is the recipient of President's Award for द बेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। और घबरा जाएंगे आप ये सब उपलब्धियां और डिग्री सुन के, लेकिन मैं उनसे ही बात करूंगा, उनसे ही पूछूंगा कि इस सब का मतलब क्या होता है, एंड हाउ वी कैन also enjoy classical music, and how it can be more accessible to all of us, even to unpad classical music ka unpad people like me, right? So let's welcome Purbayan Chatterjee. Hi Hello, Purbayan ji. everybody. Namaskar, Mayur ji. Thank you for having me on this platform, and very happy to be having this conversation with you because it's a very relevant conversation in current times. पुरबैन जी, आप सितार बजाते हैं, और मुझे ना आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द पीपल हु कैन प्ले एनी काइंड्स ऑफ म्यूजिक, क्योंकि मुझे दो ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं, एक ताली बजाना आता है मुझे, और एक सीटी बजाना आता है मुझे। सिर्फ ये दो इंस्ट्रूमेंट आते हैं। सो बट पीपल हु कैन प्ले क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आई हैव रियली लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लॉट ऑफ लव फॉर देम, स्पेशली पीपल हु कैन प्ले सितार, because sitar is like, for me, it's like the king of all classical instruments. It's an extremely complex looking instrument, and I'm sure it must be equally complicated to play it, but somehow you have made sitar cool. You have plugged in your sitar with electronic outputs, and you have made it cool. So how did that start? How did I just want to know a little bit about your connection with your instrument, with sitar a little bit. Then I'll go to the formal questions. एक तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने बोला ना कि ताली बजाना आता है और सीटी बजाना आता है, तो अपना संगीत वही है, क्योंकि हमारा जो रिदमिक सिस्टम है ना, एवरी रिदमिक साइकिल, हम लोग बोलते हैं ताली और खाली। तो अगर Yes. ताली बजाना आता है तो सम का फील है, चल रहा है सम, और खाली इज द स्पेस इन बिटवीन, तो खाली के जगह आप सीटी बजाएंगे तो चलेगा। But so that's the basis of our music, the interesting and basis of any music. As a matter of fact, the space between two beats is whether it is filled in with a musical note or filled in with silence. That's the basic thing about any kind of music. That's how you design music. रही सितार की बात, मेरे सामने है हमेशा, ये मेरा अकूस्टिक सितार है, और मैं आपसे सहमत तो बिल्कुल हूँ कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें जितना तंत्रकारी, विच इज द इंस्ट्रूमेंटल अंग, मतलब आपको फास्ट बजाना है, आपको स्ट्रिंग्स के जरिए यू कैन शो हाउ यू कैन स्ट्रम, वेदर यू वांट टू डू थिंग्स लाइक दिस, ऐसा करना है, या तो वाह आपको, वाह, क्या बात है, या तो मजा आ गया। आपको मींड जिसको बोलते हैं, जिसको विच इज अ टिपिकल इंडियन थिंग, ये बजाना है, या तो आपको क्लासिकल बजाना है, जैसे मैंने ये बजाना है, या तो आपको फोक बजाना है, जो आपने फोक का जिक्र किया, विच इज द रूट ऑफ
all music. So ये भी बज सकता है। और अगर आपको मान लीजिए गजल बजाना है, तो सब कुछ बच सकता है। वो सितार का वही फायदा है। बट द थिंग इज, कई साल पहले जब मैं आई वाज अ यंग आर्टिस्ट, एंड आई वुड लाइक टू थिंक आई एम स्टिल अ यंग आर्टिस्ट, बट व्हेन आई वाज रियली Of यंग इन course. इयर्स, I refuse to grow old. हाँ सेम growing up हियर। growing up is a trap, Purban जी, हमें उसमें नहीं फंसना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, because every day you grow up, you are one step closer to your death, so better to be one step closer to your birth। also also for artists it's always important to stay young and to stay relevant, बिल्कुल। because अगर आप मेच्योरिटी के साथ में एक तरह की जड़ता आ जाती है, वो नहीं और होनी क्या चाहिए, and you should always be जी। fluid and should always be more childlike. So, in the Please, please. spirit of fluidity only, I had decided at a certain point, because I was listening to different kinds of music, and मेरा अभी भी आप मेरे devices में, if you look at the list of music I have, it's highly eclectic. Of course, there is Indian classical. Of course, there's a Bollywood. There is some Indian independent stuff, but there's a lot of jazz. I mean, I'm a big fan of all the jazz masters. From Pat Metheny to Chick Corea to all of those people. John And Coltrane. John called, of course, the great Miles अच्छा, Davis, or आप वो very old fashioned where the music is concerned, but हाँ। दिल से बच्चा रहना चाहिए, but सुनना पुराना म्यूजिक चाहिए, ज्यादा मजा आता है। तो नहीं, पुराना नया सब कुछ। सो आई वांटेड टू ब्रिंग सम एलिमेंट्स ऑफ दैट म्यूजिक दैट आई हर्ड, एंड आई वांटेड टू हैव न्यू साउंड्स एंड न्यूअर मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, न्यूअर मोड्स ऑफ फ्रेजिंग। अभी देखिए, जैसे आपने प्लग इन का जिक्र, तो प्लग इन करने से क्या होता है, आई हैव क्रिएटेड दिस फैंसी लुकिंग ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रूमेंट जो सभी ने देखा है, और उसका तो काफी डेमो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ डेमो हियर बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ स्टूडियो सेटअप, लाइक you have to plug in your instrument, but uska bahut sara videos are out there on YouTube and stuff. But what I want to talk about is that even on an acoustic instrument like this, हाँ, तो मैंने जिस तरीके से बजाया, you can either play, अगर आपको क्लासिकल तरीके से बजाना है, और जी। you can make it a little peppy। हाँ वही हाँ। बज रहा है, वही इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। मैं आई एम क्रिएटिंग अ रिफ लाइन। सो see, just by changing the context, you don't need to change the content, you're still playing the same notes, the same stuff. You can sometimes create a different vibe, so that's what you're saying, is it's important to be fluid, and as an artist you must continue to feel young and flow। तो सारी बातें आपने कह दी है। बहुत भयंकर मजा आ रहा है मुझे। मैं आई जस्ट वांट टू टेल द व्यूअर्स वन मोर थिंग, दैट इफ यू वांट टू चेक आउट मोर वर्क बाय Purban ji, there's lots of videos on YouTube, but he has a wonderful website also, www.purbayan.com, purbayan.com, and you can check it out। and when I saw the website, मैं मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं, मैं अभिभूत हो गया था। अभिभूत होने का मतलब होता है लज्जित होना, मतलब मुझे थोड़ी शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि मैंने कुछ भी नहीं किया लाइफ में। सो आप भी चेक कीजिए और लज्जित होइए और खुश भी होइए कि हमारे इंडिया में इतना अच्छा, इतना कमाल टैलेंट है। एनीवे, Purban ji, I just want to ask, begin the formal line of questioning by one of the basic questions which everybody asks: what is the core of classical music? वो क्या चीज है जो किसी प्रकार के म्यूजिक को क्लासिकल म्यूजिक बनाती है? जैसे मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, लिटरेचर में बहुत सिंपल सी चीज है, जो चीज शाश्वत होती है, जो हमेशा चलती है, जो आज भी हिट है, कल भी हिट रहेगी, परसों भी हिट रहेगी, किसी जनरेशन को अचीव कर सकता है, हर एक जनरेशन को ट्रांसपास कर सकता है, इंप्रेस कर सकता है, वो क्लासिकल लिटरेचर है। लेकिन म्यूजिक जी। में ऐसा क्या है जो किसी पर्टिकुलर चीज को क्लासिकल बनाता है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि द इंडियन कॉन्सेप्ट एंड द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक ओनली।
So when you talk about the classics in literature, for instance, say in Western literature, English literature, या कोई West का literature है. So classics are timeless. Those which are like say Shakespeare. If you're talking about Shakespeare, वो तो Correct. लोग अभी भी पढ़ते हैं, अभी भी स्कूल कॉलेज में करिकुलम में है. There's no hard and fast rule about what, Shakespeare is classic, but so is Sylvia Plath, who is much more, modern. In Apna literature, Rabindranath Tagore is classic, but if you look at Vikram Seth, he's also become a classic. So dhire dhire things. So if you want to sum it up, it is things which have stood the test of time. Those are Correct. classics. But Yeah. in the Western concept of music, classical music, हम लोग जब भी जिस वक्त classical music बोलते हैं, it is a certain time period in history, because they had the Baroque period, they had the Hmm. classical period. It all started with Gregorian chants. जैसे हमारे Hmm. यहाँ भी वैदिक chants, हमारे यहाँ भी 3 नोट तो था. Hmm. इसी में सारे chants होते थे, अभी भी होता है. Hmm. मंत्र पाठ जब होता है कोई भी मंदिर में, या चाहे कोई भी रिलीजियस फंक्शन में, you have 3 notes only. Those are the Vedic chants. That's where it all came from. Okay. उसके बाद आप अगर हिस्टोरिकली देखें ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी एक्चुअली. हम लोग इसके बारे में रिसर्च, आई थिंक द मोर यू कैन डू, द मोर you'll find interesting nuggets of information. कि उसके बाद क्या हुआ, जिस वक्त पर्शियन इन्वेशन हुआ, जिस वक्त Amir Khusro Saab aaye, this is in the time of, Genghis Khan, and post that, when the Which is Muslim also the influence. classical age of Islam, when Islam was doing very well across the world, the golden age of Islam, where the Islamic scholars, Islamic musicians, they traveled all across the world, mostly towards eastern side, and they left Ji, their imprints everywhere. Ji. absolutely. And they brought amazing culture, amazing poetry. आप देखिए उस वक्त आमिर खुसरो साहब, उसी वक्त सूफी मूवमेंट, सूफी Ji. मूवमेंट आ गया. जिस वक्त आप देखेंगे, the artists are Muslim artists, but they sing about Krishna. If you go to the Manganeers in Rajasthan, you will see that. And the Bhakti movement, which is the artists are Hindu artists, but they might be saying Allah and Maula, because Allah and Maula, और या तो भगवान या तो ऊपर वाला, is not confined to a religion at that point in time. Just like the music itself, the mode of expression. उस वक्त क्या बहुत सारे intercaste, interreligious marriage होके the whole gene pool also became much more mixed. उसके वजह से आप देखिए साजों पे भी उसका influence आया. वीणा, Ha. uh, There's a certain marriage happening between the instruments also. जी हाँ जी. तो it's a developmental process. What I'm trying to say, without getting the history, you can study elsewhere, but this is my perspective, is it's a developmental, वो process अभी तक जारी है. हम लोग चाहे Hmm. बोले, this is the thing about being a contemporary human being, is हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो भी मिक्सचर, जो भी डेवलपमेंट होना था वो पहले हुआ है. ये नहीं मानते कभी कि अभी भी चल रहा है प्रोसेस. अभी भी it's an ongoing process, वो कभी खत्म अभी नहीं का हो सकता. 50 साल बाद मालूम पड़ेगा. सो Correct, correct. उस वक्त क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम कल्चर केम टुगेदर and formed an instrument like the sitar out of the veena and the Persian setar. ठीक है. करेक्ट. तो ये सब बिकॉज साथ आके अर्लियर इट तो वाज अब ओनली वीणा. मतलब हम लोग जब जब मिथोलॉजिकल कोई भी वर्क ऑफ आर्ट देखते हैं, तो हम नारद मुनि को देखते हैं या सरस्वती को देखते हैं, उनके पास में वीणा होती है, सितार नहीं जी होता है. करेक्ट. जी सो वीणा इज करेक्ट अ ट्रेडिशनल एंशिएंट इंडियन इंस्ट्रूमेंट, बट सितार इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ वीणा एंड द पर्शियन एग्जैक्टली. सितार. जी. तो अभी अगर अगर ऐसा हुआ है, मान लीजिए 500-600 साल पहले, हाँ, या 1000 साल पहले, या 500 साल, या 100 साल पहले, ये तो मैं जी. 100-200 साल की बात कर रहा हूँ. हाँ, 200-200 years. 200 अभी years देखिए, back. अभी से 100 साल बाद आप सोचिए, लोग बोलेंगे कि एक सितार करके इंस्ट्रूमेंट था, वो पहले ऐसा दिखता था. उसके बाद एक हाँ. कोई बंदा आया था जिसने एक ट्रांसपेरेंट सितार बनवाया था. उसके बाद अभी सितार ऐसा दिखता है, या तो कुछ उसका दूसरा नाम होगा शायद, क्या पता 50 साल 100 साल बाद क्या होने वाला है, मुझे क्या मालूम. So this is the process, and this is how our music has gotten so strong, because we have absorbed so many elements. आप genetics में देखिए ना, DNA में देखिए, mixed breed, हम्म. कुत्ते से देखिए ना, starting from dogs, mixed breed dogs are much stronger. So Yep. ऐसे
आप देखिए, इवन इन ह्यूमन बीइंग्स और इवन इन एनी काइंड ऑफ क्रीचर और स्पीशीज और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, when two kind of DNA mix together, you have a third kind of thing coming out. And ऐसे कितने सारे, we have white tigers. So similarly अपना जो म्यूजिक भी है ना, वो इवॉल्व कर करके, and because our culture is so inclusive and because we allow for that evolution to happen, जहां जहां ऐसा हुआ है, it evolved. And jazz music कैसे आया, classical music, when the African people of African origin went to New Orleans, from they went from Senegal, landed in New Orleans, they went into the conservation hall, which is a part of history. उधर से क्लासिकल म्यूजिक के जितने रिजिड रूल्स थे, उसको तोड़ मरोड़ के लोगों ने जैज म्यूजिक बनाया. तो अभी देखिए, दैट्स हाउ म्यूजिक इज सो इंटरेस्टिंग. बट आपको लगता है कि ये जो डिवीजन है कि ये क्लासिकल है या ये सेमी क्लासिकल है या नॉन क्लासिकल है, ये डिविजन्स, these tags are temporary, they are temporal tags. मतलब आज के दौर में जो शायद सेमी क्लासिकल है या इनफॉर्मल म्यूजिक है, वो आगे चल के वो भी किसी तरह का क्लासिक हो सकता है, जस्ट लाइक शेक्सपियर्स वर्क्स और व्हाटएवर. that's what you're trying to say. Well, that is a very interesting perspective. Yeah, it is. I mean, with time, definitions change, but it is also कहाँ पे पेश किया जा रहा है. जैसे अपने शेक्सपियर ने इतना सारा सोनेट लिखा है. Okay, sonnet का एक format है. Sonnet usually has 14 lines. There is usually iambic pentameter or trochaic tetrameter. So ये सब सारे forms है. And there are two stanzas of 8 lines and 6 lines. That's how exactly it's divided. Yeah. तो but अभी शेक्सपियर जैसा प्रभावशाली किसी ऑथर ने कभी डिसाइड किया मैं 14 लाइन की जगह 15 लाइन लिखूंगा, और उनका अगर इतना प्रभाव है लोगों के ऊपर, मना कौन करेगा. सो ऐसे ही आर्ट चेंज होता है. मैं तो बोलूंगा ओके. ओके, एक लाइन और ज्यादा सही तो चलेगा ना. तो that's how it is, and that is how cadences, and that is how expressions and things have changed in our music also. So like that, it also depends on where it is performed. जैसे तानसेन, मियां तानसेन जब दरबार में कोई राग बजाते थे, उसको दरबारी बोलते थे. ठीक है, जैसे तोड़ी, राग तोड़ी दरबार में बजाते थे, उसको दरबारी तोड़ी बोलते थे. घर पे गाते बजाते थे, वो तो बीनकार थे बेसिकली, तो उसको मियां की तोड़ी बोलते थे. तो थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता था, बिकॉज आप जब दरबार में बजा रहे हो, आपका जो ऑडियंस है, ऑडियंस का प्रभाव आपके ऊपर आता है. सो सिमिलरली आवर म्यूजिक ऑल्सो, I don't know, for that time it might be different acoustics, it might be different because दरबार का structure अलग है, घर का structure अलग है, of course audience अलग. I'm sure there must be something going on, and it might not be a very formal process, but कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता होगा कि दरबार में इस तरीके से परफॉर्म करना बेटर रहता है और घर पे इस तरीके से बेटर रहता है. बिल्कुल. अभी आप देखिए, आपको मैं मिसाल के तौर पे एक चीज दिखाता हूँ. रागा हमीर, ठीक है, मैं बजा रहा हूं, ये हमीर की बंदिश है, क्लासिकल, वेरी क्लासिकल. बजाया मैंने, ठीक है. अभी आप देखिए, मधुबन में राधिका नाची. अभी हमीर का ये बंदिश, किसी ने बंदिश के का जो फॉर्म है, उसी तरीके से किसी ने लिखा है, और इसको किसी फिल्म में पेश किया गया है एज अ सॉन्ग. अभी उसको हम लोग फिल्म सॉन्ग बोलते हैं, बट फिल्म सॉन्ग तो है नहीं, बंदिश है. अभी झनक झनक पायल बाजे, ऐसी बंदिश भी फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है. So the whole thing is where you place it and how you place it. That sometimes defines the genre, but the fluidity between genres is there. Even in the West, if you see R&B and soul, are the dividing lines are very blurred. Very blurred. But why I think people ask this question a lot of times, that I think they want to identify classical music more sooner than others. कि अगर कहीं classical बजे तो मुझे पता चल ये classical बज रहा है, तो how can I can tag it, how can I उसका वजह तो ये है कि क्लासिकल वालों ने डरा के लोगों को ऐसे बहुत सालों से डरा के रखा है कि भाई ये क्लासिकल है, थोड़ा दूर रहो. तो उसके वजह से लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. अच्छा भी है, आइडेंटिफाई तो करना ही चाहिए,
because form and structure gives it that classical tag. But लोगों को डराना नहीं चाहिए और लोगों को डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो है वही म्यूजिक। आप जो प्लेबैक अभी फिल्मों में आके कोई फिर प्लेबैक कर रहा है, वही गाना गा रहा है, वही नोट्स है, वही मुड़की है, वही हरकत है, उसको सिर्फ फिल्मों में गाया जा रहा है। तो लोगों को लगता है ये तो फिल्म का है, ये फन है। सो धीरे धीरे हम हाँ लोगों का फर्ज ये बनता है कि क्लासिकल म्यूजिक को भी इसी तरीके से पेश किया जाए। इन इट्स form, you should have complete knowledge of the form, you should have the ability to present it in its true form, and then to show that you are able to make it fun, and then to play around with the form also. देखिए But to play around with कुर्बान the जी, form, first you have to present the original form. करेक्ट। चूंकि आपने बात की है डराने की और क्लासिकल म्यूजिक के पहरेदारों की, सो आजकल गेट कीपिंग के बारे में इट्स बिकम फैशनेबल टू कॉल आउट द गेट कीपिंग विच इज हैपनिंग एवरीवेयर, चाहे वो बॉलीवुड में जी नेपोटिज्म की डिबेट हो या चाहे पॉलिटिक्स में एक पर्टिकुलर पार्टी की डिबेट हो। मगर जहां जहां गेट कीपिंग होती है वहां वहां आज की जो जनरेशन है वो थोड़ा उसको पसंद नहीं करती है। वी ऑलवेज कॉल आउट पीपल हु आर गेट कीपिंग। तो आपको लगता है कि हमारा क्लासिकल म्यूजिक सीखने का जो तरीका है, ये जो घराना सिस्टम है, जो हाउ द verbally or orally how one person teaches a bunch of students and then those students will go and it takes generations to hone one set of musicians in that, it's a slow process, वो बीरबल की खिचड़ी की तरह धीरे धीरे पकता है घरानों के अंदर क्लासिकल म्यूजिक। क्या आपको लगता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या रोल है, और क्या वो आज के वक्त में, आज के समय में, या तो आप यही सही है, ऐसे ही होना चाहिए, या फिर ये बताइए कि आपको क्या लगता है अगर वो इवॉल्व हो तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ evolution for classical gharanas? And also I want to have a little input about your own training and your own gharana, क्योंकि जी आप सेनिया मैयर घराना से बिलोंग करते हैं, तो जरा उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। जी देखिए, ये जहां तक घराना का सवाल है, आई विल स्प्लिट योर क्वेश्चन इनटू इनटू पार्ट्स। एक तो पहली बात तो ये है कि गेट कीपिंग, सी by our very nature we are territorial, all of us. We always like to mark our boundaries कि भाई ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये हमारा बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर भी देखो आप, सोसाइटी बनता है, उसके अंदर भी 5 लोग आ जाते हैं, उसमें से एक बंदा बोलता है कि नहीं नहीं बाहर के लोगों को वेलकम करो, कोई बोलता है नहीं हमारे टेनिस कोर्ट पे सिर्फ हमारे बिल्डिंग वाले ही खेलेंगे, जो भी। ऑल दिस थिंग, द टेरिटोरियलिज्म इज पार्ट ऑफ आवर नेचर, part of a very system very that we well live very in. well observed, it's ingrained into us, being जी territorial is ingrained into us। now, as you correctly said, abhi modern life, it's a much more global world, and things have opened up. अभी मैं इधर बैठ के अब वीडियो कॉल पे जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप शायद, I don't know which city you are in right now, but you could be literally I'm in anywhere in Mumbai, the world. You are in yeah, Mumbai, yeah. well, I but we can be are in anywhere, different. I get the So point, yeah। yeah, so the point is, it's a global world. मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, वेनेजुएला का म्यूजिक इधर बैठ के सुन रहा हूँ, कोई बना रहा है वीडियो, लाइव देख रहा हूँ। So it's, the world has opened up. So the concept of the gharana was in our system basically based on geography. जैसे लखनऊ घराना, हम्म लखनऊ में हम्म किसी उस्ताद ने घराना की स्थापना की थी, उनके जितने हम्म स्टूडेंट्स है, and then 3 generations, they say that it takes 3 generations, and it was also very much based on heredity. My belief system is that in just like if you look at the Vedas also, if you look at the caste system was also not meant to be a bad thing. It was just a segregation based on profession. It was like मैं ये काम करता हूँ, तुम ये काम करते हो। But now we human beings, we get into hierarchy कि नहीं मैं ये काम करता हूँ तो मैं थोड़ा। So similarly, this whole concept of nepotism is a convoluted system. The concept of heredity was there, even अभी भी film industry में है। It's natural, अगर मैं musician हूँ तो मैं अपने बेटे को म्यूजिक सिखाऊंगा, ये नेचुरल है। मैं And it is also natural for anywhere in the animal kingdom, you see the lion feeding their own cubs. ऐसा तो नहीं कि मैं किसी दूसरे के बच्चे को जाके खाना खिलाऊं, ये नेचुरल नहीं है। these are these are things. Now
with the civilization progressing, we are But learning having that make having said that, Purbayanji, that is true for your personal properties, personal things, personally जो आपने खुद अर्जित किया है उन सब चीजों के लिए वो ठीक है. But म्यूजिक, आर्ट, कला, विज्ञान, ज्ञान, ये सारी चीजें तो एक पब्लिक धरोहर होती है ना. ये सबके साथ शेयर होनी चाहिए, ये सबको इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए. ऐसी एक आर्गुमेंट लोग जरूर देना बिल्कुल. चाहिए. तो तो फिर आप क्या मैं कहेंगे? उधर ही आ रहा था. That's what I was जी saying जी. is, as our civilization has progressed, we have realized that not only culture, not only music, not only arts, sharing, आप किसी के साथ शेयर करोगे तो अपना भी बढ़ेगा. Why? What is the concept of equity? Why are हम्म. 10 people buying equity in one thing? It's you're sharing wealth, you're sharing profits, you're sharing losses. That's the concept of equity. So the concept of equity is a very evolved thing in our, but andar to hai na that whole primal need Correct. to be territorial or whatever. So this whole gharana system became a very hereditary system, and हम्म. it was established as three generations of established well-known performers. But those three generations were not necessarily me, my son, or my daughter, and my daughter's son, or my son's daughter. ऐसा नहीं था. Three हम्म. generations means three literal generations of students. It could be आपके शागिर्द, उनके शागिर्द, and it could be Okay. like that. But it has now been interpreted. It sometimes it tends to become. So as I said, मेरा बताने का मतलब ये नहीं था कि I'm condoning the nepotism that exists. I'm just saying that it's basic to human nature. हो ही जाती है. Anyway, so the घराना system was based on geography की जो लखनऊ में था उनका घराना जो उस्ताद थे फलाने इधर. अभी क्या है? अभी these things are undergoing some change. Now the names and the nomenclature has already been made. फरुखाबाद तबले का फेमस घराना. दिल्ली, हम्म. पंजाब, दिल्ली तो खैर अभी भी है, दिल्ली में रहने वाले अभी बहुत सारे लोग हैं, बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली घराने के बजाते हैं. हाँ जाहिर है, बिकॉज उनके उस्ताद दिल्ली में हैं. सो द थिंग इज, बट बहुत हमारे सारे यहाँ घराना. हमारे बॉलीवुड में यहाँ पे तो एक डिज्नी घराना भी है, क्योंकि हम सारे डिज्नी के गाने हिंदी में डब करते हैं. तो हम जितने भी सिंगर्स और हम लोग आपस में मिलते हैं, हम लोग बोलते हैं अच्छा तुम भी डिज्नी घराने के हो, आ जाओ. But the see, Abhi, now the thing is, an organization like IPRS, or जी. when you get into music publishing and when you get into rights and royalties, that's the beauty of it. कि वो घराने डिज्नी घराने का जो rights है जो है, तो मान लीजिए मेरा घराना है, मेरा कॉम्पोजिशन है, तो कम से कम उसके ऊपर आप कोई और यूज करे, जरूर यूज करे. इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग. मैंने कोई बंदिश बनाया है तो कोई और बजाए तो आई फील ग्रेट. बट बजाते वक्त कम से कम मुझे एक्नॉलेज करे. इफ देयर इज अ सर्टेन रेवेन्यू सिस्टम, देन आई शुड बिकम पार्ट ऑफ दैट रेवेन्यू सिस्टम. तो Absolutely, दीज थिंग्स आर absolutely. कमिंग इनटू द घराना सिस्टम एंड दे शुड. मुझे They तो should. लगता है बल्कि बंदिशों पे भी रॉयल्टी लगाया जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि क्लासिकल है मतलब रॉयल्टी फ्री है, ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज मैंने एक कॉम्पोजिशन बनाया है, बंदिश बनाया है, कंपोज किया है, वो बंदिश कोई और जाके परफॉर्म करेगा कहीं और पे, तो मेरा रॉयल्टी आना चाहिए. इफ इट्स अ सॉन्ग, इफ इट्स अ बॉलीवुड सॉन्ग, मेरे पास रॉयल्टी, उनके पास कंपोजर के पास रॉयल्टी, सो मेरे पास आना चाहिए. सो आनी दीज आर चाहिए. थिंग्स वी आर गेटिंग इनटू, Yeah. and No, so the we Gharana are very system is also actively evolving. at IPRS also we are very actively trying to document what we can and what is available to us, I'm and we are aware of trying that. to create systems. जी, we are trying to create systems that what जो आप बोल रहे हो वो in future, in very near future वो हो जी. जाना चाहिए. बिल्कुल और बिल्कुल. और देखिए अभी हो क्या रहा है. ये क्लासिकल नाम का जो टैग है ना, नाउ दिस इज आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड एक्चुअली माय इंटरेक्शन विद यू हैज बीन वेरी एनलाइटनिंग फॉर माय सेल्फ आल्सो, बिकॉज दिस क्वेश्चन ऑफ Okay. जॉनरा इज एड्रेस्ड वेरी नाइसली. बिकॉज आप क्लासिकल बोल के उसको एक ग्रे जोन में डाल देते हो. बट द इफ आई एम अ क्लासिकल आर्टिस्ट, टुमारो आई एम गोइंग टू रिलीज एन एल्बम, मान लीजिए उसमें क्लासिकली नंबर है, उसको फिर सॉन्ग करके ऑल्टरनेटिव जॉनरा में डाल दिया, वो एप्पल आईट्यून्स में गया, किसी हॉलीवुड प्रोड्यूसर को पसंद आया, बोला भाई ये अपना मूवी में यूज करना है, तुरंत. इफ आई एम साइन टू अ पब्लिशिंग हाउस लाइक आई एम साइन टू अतुल चुड़ामनी जी, वो टर्न की, they will go Hmm. and collect. So it's a classical bandish only, but because it Correct, is correct. coming under the system, it is actually so this is how gharana is going to become. This is the modern concept of gharana. From my experience in IPRS, I have realized that there are three steps to the betterment of all artists. Number one is awareness. Number one is people should know that this is the artist and these are his rights, right?
Number two जी, is the implementation, the legal framework and everything of executing those rights and trying and documentation. करेक्ट, Matlab, now जी, this is not only IPRS responsibility or government response. This is artist responsibility also. As much जी, as possible, the documentation ऑफ has to कोर्स, happen. And the ऑफ third thing कोर्स, is of course collecting and distributing. So this is a very very interesting thing that we are talking about, Purva ji. एक तो पहली बात, मुझे इतना मजा आ रहा है आपके साथ बात करके, मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्लासिकल म्यूजिक पे बात करूंगा और शेयर्स और इक्विटी के बारे में क्या करें, और अभी मुझे कोविड कोविड टाइम्स में शेयर और इक्विटी जो खरीद के रखा है उसको ही फायदा है, बाकी काम तो नहीं है क्लासिकल। so this is so much fun. We should actually do more sessions with you. But anyway, I एब्सोल्युटली, have आई a वुड lot लव of टू। questions. So I'll quickly go to the next जी, one. How relevant is the, यही घराने से ही संबंधित मैं आगे चलाता हूँ बात को कि how relevant is the Guru Shishya Parampara now? How in today's times does it influence the learning process in a creative field, in a good way or in a bad way? What are the, देखिए हम I would like to believe कि आप घराने में रहे हैं और आपने गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो किया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आज आप हमारे अंदर के आदमी हैं। आप हमें राज बता दीजिए कि गुरु शिष्य परंपरा की अच्छाइयां, बुराइयां, टेक्स, आउटटेक्स, गुड, बैड, आपका क्या अनुभव रहा है एंड व्हाट हाउ डू यू सी इट गोइंग फॉरवर्ड? सी पहले तो मैं गुरु शिष्य परंपरा को ट्रांसलेट करूंगा इन इंग्लिश। ओके, द मेंटोर मेंटी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। ठीक है, आप अगर पीएचडी करने के लिए जाएंगे, मान लीजिए कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाएंगे या तो मान लीजिए हार्वर्ड में जाएंगे, तो भी आप पीएचडी जिस वक्त करोगे आपके पास एक मेंटर रहेगा। You will be the mentee of that mentor, and the relationship that you will enjoy with your mentor, and the success of the relationship will also depend on the same factors as our Guru Shishya Parampara. So essentially, Guru Shishya Parampara is a global phenomenon. Okay, and like any other institution, uh, this is also subject to change. And हम्म। like marriage, okay, I like to compare it to marriage. Okay, शादी का जो basic tenets था initially, if you go back to ancient human civilization, when the concept of society came and people started getting married, क्यों किए थे कि मेरा प्रॉपर्टी मैं किसको दूंगा, तो हम्म। इसीलिए किसका बच्चा है, व्हाट इज द लीनिएज, फैमिली ट्री, उधर से शादी, उसके बाद प्यार के वजह से शादी, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चेंज हुआ ना। नाउ द कॉन्सेप्ट of shadi and society, the institution of marriage as it stands today is very different from what it was 20 years, 30 years ago, and that is the best way is to or forward is to embrace that change. Similarly, Guru Shishya Parampara ka jo basic values hai, core values have remained the same because they're very universal. As I said, the mentor and the mentee relationship, you cannot impart information just by uploading and downloading data. It's not going to happen. It's हम्म। not happened, it is not happening also. We have artificial intelligence now. I am connected to some institution where I am teaching a course to a student through an artificially intelligent interface. So this is embracing change. फिर वाओ। भी मैं how, हूं how, एक साइड पे। how does this is very fascinating, this is super fascinating, like how does it work? Can you, like, we'll take a small detour, but for my personal gratification, Yeah, like how does it so work? some very brilliant engineers have written an interface where my video is recorded teaching. Okay, मान लीजिए मैं यमन कल्याण सिखा रहा हूँ, ठीक है? That interface is observing everything from my finger position, how I hold my instrument, to the speed at which I play, to the things which I am see. Every sentence that I'm saying is being transliterated. They are trying to understand, the AI is trying to understand. Of course I have to do it in English for now because the AI only understands English, but हाँ। it's trying to understand every phrase. Okay, now the AI is fed with that data. Now the student simply sees the video, huh? And हम्म। then the student plays in front of the AI, and the AI is then telling the students by observing me. The thing with AI is the more data you feed it, the better it gets. The stronger it So becomes, yeah। या सो एआई को पता है मेरा फिंगर पोजीशन देख के कि ये सही है या तो ये गलत है, या तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो स्टूडेंट को एआई बता रहा है। मेरे मेरे को द ह्यूमन नीड फॉर मी टू पर्सनली सिट आपको अराउंड बार एंड। बार टिप्पणी की जरूरत नहीं है। हाँ, बट फिर भी मैं तो हूं ना एक साइड पे। सो द एआई इज लर्निंग फ्रॉम मी एंड शिष्य इज लर्निंग फ्रॉम एआई। एक साइड में मैं हूं, दूसरे साइड वाह। पे शिष्य है। द मेंटोर एंड द मेंटी स्टिल एग्जिस्ट,
मुझे इंफॉर्मेशन कहीं से आ रहा है, मैं उसको इम्पार्ट कर रहा हूँ. At every stage, even the AI is doing a degree of assimilation of the information that it's given. That is the job of the guru, is to assimilate the information. If I were just passing on raw data, I wouldn't be a guru. I would be passing on information. So This is yeah, very fascinating, Purban. This is very amazing what you're talking. But जो हम सुनते हैं गुरु शिष्य परंपरा की कहानियां या किस्से या जो सारी बातें हमारे मिथोलॉजी से लेके अभी तक चली आ रही है, या हमने ऐसे ही कहीं महफिलों में किस्से सुने, वॉटेवर, वो सारे किस्सों से हमको लगता है कि when you learn music through or dance through a guru shishya parampara, it's not just the craft, it's not just the art. There is a lot of life learning that is happening. बिल्कुल There's a lot of है personal interaction also, you know. जी. So Of course. what do you feel about, do you think that there'll be a loss of that, and then how to नहीं, recompensate for that? you're very right. You are learning a lifestyle. You are learning how to behave. You're learning how to lead your life. You're learning a philosophy. But even in the ancient Guru Shishya Parampara, the success of the Shishya is based on his or her interpretation of that philosophy. हाँ, जो आप Ah, हमने oh, देखा nice. है, या इतिहास में हमने देखा है, जो there is no place for parrots. If I have given a certain philosophy or a certain lifestyle which works for me, the same thing will not work for a shishya or somebody who's learning from me. It won't work for them if they are 20 years younger than me. They will have to interpret. It's interpretive, and I may be influenced by their thought process to learn to think like him or her, and they may learn to think like me. So you have to, it's a constant process of filtration. It's a constant process of putting things through a sieve and then taking out what you want and interpreting it in a certain way. मैंने एक हिंदी की किताब में पढ़ा था, बहुत अच्छी चीज लिखी थी कि ज्ञान अनुकरण से आरंभ होता है, पूर्ण सृजन में. बिल्कुल, लाख रुपए वाली बात है. लाख रुपए वाली बात है कि आप अनुकरण से आरंभ कर सकते हो ज्ञान, लेकिन अनुकरण अच्छे से कर लेना वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं है. ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब आप सर्जन खुद कर सको. ज्ञान अनुकरण से आरंभ होता है, पूर्ण सृजन में. बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही. अच्छा, एक और मुझे बात याद है गुरु शिष्य परंपरा से हमारे. मैं तो थोड़ा फिल्मी आदमी हूँ, फिल्मों में काम ज्यादा करता हूँ. तो एक पिक्चर थी सलमान खान की, लव नाम की पिक्चर थी. वो लव पिक्चर के अंदर उसको म्यूजिक सीखना होता है. अमजद खान गुरु होते हैं, अमजद खान के पास में जाता है, बोलते हैं मुझे म्यूजिक सिखाइए. वो पूरा दिन अमजद खान बोलते हैं हाँ ठीक है, एक काम करो, ये ले आओ वो ले आओ. उसको एरेंड्स पे भेजते रहते हैं, फालतू के काम करे, टेबल साफ कर दो, ये कर दो वो कर दो. पूरा दिन उसको म्यूजिक नहीं सिखाते. 12 बजते हैं तो बोलते हैं अब जाओ घर तुम. तो बोलते हैं लेकिन आपने मुझे संगीत तो सिखाया ही नहीं. तो वो बोलते हैं अरे बरकुरदार, हमारे साथ रहना संगीत सीखने के बराबर है, जाओ. So तो देन सलमान खान से नहीं नहीं, मैं संगीत सीखने आया, और ये टेबल साफ करना और ये सब करना ये संगीत नहीं है, मैं संगीत सीख के ही जाऊंगा. एंड देन द गुरु ब्रेक्स बिकॉज ऑफ हिज रेजिलियंस एंड देन ही टीचेस हिम. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये जो आपने बोला ना कि कितना शिष्य को लेना है और कितना उसको इंटरप्रेट करके आगे से, वो काफी हद तक शिष्य के हाथ में भी उसकी बागडोर है. इट्स नॉट दैट ओनली द गुरु इज ऑल पावरफुल पोजीशन. सो इट्स ब्यूटीफुल. It is the job of अच्छा, the student also to take the test of the guru. अरे कोई देने लायक हो तो मैं लूं ना, और कोई लेने लायक हो तब मैं देने का मुझे मन करे. तो उसके लिए गुरु और शिष्य का एक, it's a little bit like that wavelength matching where that transmission becomes possible. Because मैं आपको बताऊं, ऐसा and what नहीं I'm है understanding कि from your examples is that it's not a one-way street. It's a little no, bit it's too, not. like guru also is soaking in something from the student all the time. Yeah. So yeah, it is totally a two-way process. Your learning, your teaching and your learning are happening. It's a cyclical process. You're giving and giving back and getting back. So that's how जो जिस बात का जिक्र आपने किया कि he used to like run errands and all that. अभी उसका दो इंटरप्रिटेशन हो सकता है. गुरु फ्रॉड भी हो सकता है. गुरु से आपसे काम ही करवा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी है. पीएचडी वाले गुरु होते हैं छोटे शहरों के अंदर जो पीएचडी करवाते हैं, उनके स्टूडेंट सब सब्जी लेके आ रहे हैं, दही लेके आ रहे हैं, यही काम करते हैं. शिष्य भी ह्यूमन बीइंग है. बहुत सारे शिष्य भी फ्रॉड होते हैं. वो उनको सिर्फ गुरु का नाम लेना है
कि मैं हाँ फलाने के पास सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, पर उनको कुछ सीखने से लेना देना नहीं है। ऐसा भी है, हाँ, दोनों तरफ से होता है। बिल्कुल पर सो बिल्कुल बिल्कुल। दोज आर ह्यूमन वेरिएशंस, बट जनरली द थिंग इज, अगर अगर गुरु सही है तो वो शायद आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप रन एरंड, आपका कितना रेजिलियंस, जैसे आपने रेजिलियंस की बात की। So there are many factors to it, and you have to, from basically it's a coming together of both ends. Both people have to have some honesty about why they are in the guru shishya Yeah. relationship, So, and then so my then things basic can. takeaway from your answers to the Guru Shishya Parambaka question is that firstly, it is not a unique phenomenon which is only happening to classical music in India. It's not just बिल्कुल that; it's a नहीं. global thing. It happens everywhere at every degree. At some stage of advanced learning, you will need to जी. see a mentor-mentee relationship, and it's a two-way street, and it's a beautiful system. And of course, there'll be human variations here and there, but overall, it kind of works. जी. जी. आई ऑल्सो, हम लोग बीच में फिल्म की बात कर रहे थे, तो फिल्म म्यूजिक में भी हमने बहुत क्लासिकल म्यूजिक यूज किया है। कई गाने क्लासिकल राग बेस्ड होते हैं, ये होते हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। व्हाट इज योर टेक ऑन ऑन और थोड़ा थोड़ा पिछले 5 या 7 या 10 सालों में कम हुआ है क्लासिकल म्यूजिक यूज करना फिल्मों के अंदर। मुझे याद है कि लास्ट मेरा कोई गाना अगर बहुत क्लासिकल इन्फ्लुएंस आया, बेस था, तो वो एबीसीडी 2 में एक हे गणराया करके गाना था, जो अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत कम पिछले 4-5 सालों में गाने हुए जो क्लासिकल बेंट वाले या क्लासिकल इन्फ्लुएंस वाले हैं। तो ये जो एक ट्रेडिशनली चला आता था कि हम बहुत सारा क्लासिकल म्यूजिक फिल्मों में यूज करते थे, और अब थोड़ा कम हो गया है। आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द See, यूज ऑफ all this क्लासिकल? is perception, हाँ. जैसे आपने जो बोला है वो बात तो सही है कि क्लासिकल म्यूजिक का इस्तेमाल कम हो गया है। एक एक पर्सपेक्टिव से तो वो सही है, दूसरे पर्सपेक्टिव से बढ़ भी गया है। अभी आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको बहुत सही एग्जांपल दे के बताता हूँ। हाँ बजा के और थोड़ा गा के भी बताता हूँ। सो इफ आई प्ले इट लाइक दिस, ठीक है, तो इमीडिएटली मुझे प्रोड्यूसर आके बोलेगा यार ये बहुत क्लासिकल है, इसको थोड़ा कम करो। बट द मोमेंट आई प्ले इट लाइक दिस, सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन परसेप्शन। मैं सेम नोट्स बजा रहा हूँ, क्लासिकल का, फोक का जेब मार के सामान निकल रहे हैं, पर बोल रहे ये है नहीं क्लासिकल। बेसिकली नहीं नहीं, इन अ गुड वे, जेब मारना ही चाहिए। संगीत ऐसी चीज है ना, जो जितना अच्छा चोर है वो उतना अच्छा संगीतकार है। चोरी मतलब थोड़ा सा उसूल से और थोड़ा सा ढंग से चोरी करनी चाहिए, बस इतना ही है। बाकी चोरी करनी चाहिए, इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द सेम नोट्स एंड द सेम, so what you said is correct, that classical music का इस्तेमाल कम हो गया, as in on a on a very explicit, on a very in a very open way, classical music का इस्तेमाल कम. On the other hand, if you see the amount of dheem tom tana that is used in ambience, even रहमान साहब कितना सारा कर्नाटिक म्यूजिक के इनफैक्ट छोटे छोटे चीजें। मुझे याद है कि एक दौर आया था बीच में जिसमें जी. सूफी म्यूजिक बहुत सडनली फिल्म म्यूजिक के अंदर बहुत पॉपुलर हो गया, तो हर गाने में अली और मौला का प्रेजेंस बढ़ गया हर जगह में। मतलब आई रिमेम्बर वन म्यूजिक कंपनी, आई वेंट टू देम विद अ सॉन्ग एंड द डमी लिरिक्स हैड अ मौला एंड दे सेड यार बहुत मौला हो गए, अभी हम लोग थक गए, मौला नहीं कुछ और कर दो आप। नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज एग्जैक्टली ग्रेट। नाउ देयर इज ताना धीम एंड ता धूम एंड ये सब बहुत अभी धीरे धीरे वी आर सीइंग द फ्रेजियोलॉजी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक और क्या. बीइंग यूज्ड ऑफन। सो अभी अभी आप देखिए जो मॉडर्न जितने भी गाने हैं, सम द गुड म्यूजिक डायरेक्टर, इवन इन ईडीएम स्पेस, हाँ, ईडीएम स्पेस, देयर डांस नंबर्स आर बीइंग मेड फ्रॉम तरानास. एक तराना को या उठा के या तो डांस नंबर्स या आइटम नंबर्स आर बीइंग मेड फ्रॉम थिंग्स व्हिच आर प्योरली क्लासिकल. सो इस्तेमाल हो रहा है, फिर बोलने बोलने के लिए लोग बोल रहे हैं कि क्लासिकल मत करो ना. तो ओनली ओनली प्रॉब्लम इज, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ our culture as it is today. We are too stuck up with the past. We are always boasting कि अपना इतना बड़ा हजारों साल का कल्चर हेरिटेज है, but we don't have the education, we don't have the institution to archive things,
to write down कि भाई ये genre है, ये hip hop है, ये R&B है, ये soul है, इसका history ये है, किताबों में पढ़ाया नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, लोग स्कूल में पढ़ते नहीं है, तो अभी when they grow up, music is a thing, वो शौकिया. So the thing is, the formal हाँ, education of जब music तक हम unfortunately फॉर्मल is. एजुकेशन में म्यूजिक को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम तो रहेगा, एंड बिल्कुल। क्लासिकल म्यूजिक सिर्फ नहीं, आपको फिल्म म्यूजिक भी स्टडी करना है, आपको कमर्शियल म्यूजिक भी स्टडी करना है, आपको स्टडी करना है कि फोक मांगनियर्स कहाँ से आए थे, कहाँ से ये हम्म। जो मौला आप बोल रहे हैं, अली मौला कहाँ से आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ यू कैन मेक इट सो और कंटेम्पररी एंड हाउ यू लोग कैन मेक इट कनेक्ट टू द वर्ल्ड. और लोग पढ़ेंगे नहीं तो बहुत सारी भ्रांतियां रहेंगी मन में, हमेशा रहेंगी। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिटरेचर से आता हूं तो मैं उसकी उसकी कुछ बातें मुझे पता है। जैसे गजलें हैं तो गजलों के 9 दौर हुए, गजल कंपोजिशन के अलग अलग जी उर्दू पोएट्री में बिल्कुल. 9 अलग अलग दौर हुए। उसमें से एक दौर जो गालिब के पहले वाला दौर था, जिसमें मीर तकी मीर थे, तब गजल जी में हिंदी ज्यादा यूज की जाती थी, आपको आश्चर्य बिल्कुल. होगा। वहां ज्यादा हिंदी यूज होती थी। मतलब अगर आप मीर तकी मीर का सुनेंगे तो काफी उन्होंने बहुत ज्यादा बेसिक जी हिंदी, अवधी, ब्रिज भाषा, उस टाइप के वर्ड्स यूज किए। ये गालिब के हाँ. आने के बाद ज्यादा पर्शियन, ज्यादा अरेबिक, और उसको एक जो जो दरबारी लैंग्वेज का कलर दिया गया, ये बात की बात है। Otherwise, ghazal was a very Indian format. It was there was no Urduism on it so much. तो ये हाँ, सारी तेरे बातें इश्क का इंतहा चाहता हूँ, ये तो क्या है, ये कहाँ, उसके बाद व्हेन यू स्टार्टेड यूजिंग उर्दू वर्ड्स, दैट्स वेरी करेक्ट एंड या इट्स इवॉल्विंग. या या तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ऐसी ही भ्रांतियां क्लासिकल म्यूजिक के बारे में भी है, ऐसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ऐसी ही मिसगिविंग्स। देयर आर लॉट अबाउट क्लासिकल म्यूजिक कि यही क्लासिकल है और ये क्लासिकल नहीं है। एक्चुअली आप जो म्यूजिक सुन रहे थे, आई एम टेलिंग द ऑडियंस डायरेक्टली, आप जो म्यूजिक सुन रहे हैं ना वो बहुत सारा क्लासिकल है। शायद आपको पता नहीं है कि वो क्लासिकल है, या उसमें क्लासिकल के एग्जैक्टली. टुकड़े हैं, उसमें क्लासिकल की चीजें आपको पता है, लेकिन है क्लासिकल ही। तो आप क्लासिकल म्यूजिक सुन के ऐसे नाक भाव मत सिकोड़े और डरे नहीं। इट्स वेरी जी एक्सेसिबल, इट्स वंडरफुल। चलिए जी. आगे, आई वांट टू आस्क वन वेरी सिंपल थिंग कि अब्रॉड में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को लेके गए हमारे हमसे एक जनरेशन, 2 जनरेशन पहले के कई मेस्ट्रोस, जिन्होंने बहुत परफॉर्म किया बाहर और बहुत अच्छा काम किया, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से सबको अवगत कराया, रविशंकर जी एंड दैट होल जनरेशन ऑफ म्यूजिशियंस, राइट? What do you think is the current state of classical music in India and abroad, and what is the what do you see the perception of Indian music outside and of course in India also? It's a very potent question, and this is something where we have to really question ourselves. What is our responsibility going forward in the future? देखिए, मैं आपको एक मेटाफर, आई वांट टू गिव यू अ मेटाफर. हाँ, जैसे सेल्स की जो टेक्निक्स होते हैं ना, आपके घर में नया प्रोडक्ट आया है, कोई लेके आया प्रोडक्ट और आपको बोला कि इसका खासियत ये है, ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट. हाँ ठीक है, आपने खरीद लिया, चलो आपको अच्छा लगा. 5 साल बाद आया, तभी सेम खासियत बता रहा है कि इसका होता है, तो आप लेंगे नहीं ना, आप बोलेंगे हाँ, इसमें क्या है, ये ये तो तो वही हो गया है, प्रोडक्ट है, उसका एक नया. ये एग्जैक्टली. तो हो गया, हाँ। सो unfortunately, I feel the great amazing work that was done by Pandit Ravi Shankar, Ustad Ali Akbar Khan Sahab, Ustad Vilayat Khan Sahab, Pandit Nikhil Banerjee, and that whole generation, Amir Khan Sahab, Bade Ghulam Ali Khan Sahab, ये लोग तो इनका जो the vocal music did not go so much to the west, but even then it went later on because of Ravi ji ने I ऐसा think काम there is a किया. reason behind that. I think because vocals are difficult to repurpose, whereas instrumentals are easier to repurpose. So Yeah, I there's a think language barrier yeah, also. so it's There's a language language barrier also. barrier, and instrument. So instrument you can put it into a biscuit ad also. वो it will make sense. Vocal आप कि न बहरे न कान भरे आप डाल नहीं सकते ना biscuit ad में. तो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। तो the anyway whatever the reason for it, but they went to the west with a message. उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, वो Oh, जो मैसेज लेके गए इधर से, the way he universalized our music. yeah. Whereas Ravi ji brought in a great deal of spirituality, mysticism, and Zakir Bhai continued with the same message. He brought in the spirituality, the mysticism, the complexity, the intellectual complexity of Indian music, showcased so many amazing collaborations with Zakir Bhai, कितने सारे जैज म्यूजिशियंस के साथ, इवन रॉक एंड रोल, फ्रॉम रॉक एंड रोल टू जैज टू हैवी मेटल, एवरीबॉडी ही कोलैबोरेटेड विद, एंड नॉट ओनली ब्रॉट अ मैसेज ऑफ इंडियन म्यूजिक का ग्रेटनेस टू द वेस्ट, बट ब्रॉट बैक दैट मैसेज टू इंडिया. The reason it worked
is because they had something new to offer. They knew how to reinvent themselves. जब रविशंकर जी ने बीटल्स के साथ अपना कोलैबोरेशन किया था, तो पहली बार वैसा कुछ हो रहा था, where it was rock, like popular music with Indian. उसके बाद जिस वक्त जाकिर भाई ने मिकी हार्ट के साथ एल्बम बनाया, with even Grateful Dead, when he did that, when it was death metal, nowhere had tabla been used in death metal. Then you couldn't with think great that kind jazz, of a collaboration. Yeah, it was amazing. तो अभी भी मैं वही लेके जाऊंगा तो नहीं काम करेगा, because that is so. In this day and age, I have to figure out what is happening, what is new now, what is the technology, what is Dolby Atmos, how can I give my song, what is production, what is quantization, how I can bring in a little dubstep here, how I can, what are the trends today, how I can connect, what is the music of Snarky Puppy. I need to know all this, and then I can bring that message, which you have to feel the pulse of each generation. Some of the eternal things, like spirituality, like meditativeness of our music are still valid. I'm not saying that they have lost their validity. बट वही चीज मैं, लोग इरिटेट हो जाएंगे ना कि मैं ये चलो और एक बंदा आ गया जो बोल रहा है कि ध्यान पे बैठो तो सुनो, नहीं चलेगा ना. You have to have a person who says, okay, now वो तो ठीक है, आपने बहुत ध्यान, अभी इधर देखो कि कितना how peppy it is, or how virtuosic it is. How can I play through harmonies? I feel a great message to the West is their world of harmony. How harmony is interesting, which is not something which exists so much in our culture, musical culture. I think you must think about them if you want our to music connect. is very star centric. Our music is very one person centric, whereas their music is like a group Inclusive. activity. It's like a solo sport versus a team Also, sport. yes, बहुत लाख रुपए वाली बात है कि हम लोग our music often becomes a lead kind of. तो जो ख्याल गा रहा है वो सोच रहे कि वो तबला वाला जो बैठा है मेरे राइट साइड में वो भी मेरा नौकर है, हारमोनियम वाला भी नौकर है, मैं गाऊंगा, मेरा फ्रेज है, थोड़ा धीरे ठेका दो, थोड़ा शांति से बजाओ. सो दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर इन द वेस्ट में उधर कोई सोलो ले रहा है तो ये चुपचाप बैठे, कोई सोलो ले रहा है तो ये बैकिंग कर रहे हैं, मैं क्या बैकिंग में बजा सकता हूँ. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द bass is a backing instrument, it holds the whole ensemble down. So these are things we should learn from them. And कि मैं bass is हर what बार the track, the sound of the track. तो how I can be a backing musician, how that is a skill set. तो ये सारी चीज लेके हम जाएंगे उनके पास. How I can learn about harmony. See, if you want to create a bridge with another culture, you have to learn about that culture. आप सिर्फ अपना संदेश लेके उधर जाए कि मेरे पास देखो टोकरी खोल के ये है, मेरे पास ये है, देखो देखो देखो, तो वो बोलेगा भाई तेरे पास है, मेरे पास भी तो है कुछ, वो अपना खोलेगा. So you must be interested in their. So any successful collaboration works like that. I think we have come to a point where we need to reevaluate and figure out how we can look at their stuff also, and which is what something that Zakir Bhai has done with great deal of even Pandit Ravi Shankar, in those times also, he knew all about how to write concertos. He was the king of collaborations. He was like a collaboration dude. Yeah, absolutely. So ये सारी चीजें करना जरूरी है, and we must go forward. You should not live on past glory. जो हो गया वो तो कमाल है, अच्छी बात है, अभी आगे कुछ क्या करना है. देखिए अब मेरे एक सवाल में दो सवालों के जवाब हो गए. आई वॉज गोइंग टू आस्क यू अबाउट फ्यूजन एंड कोलैबोरेशंस, बट यस, द टेक अवे फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन का आंसर इज दैट ओनली के न्यू टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन एंड एडिंग न्यू डायमेंशंस एंड अंडरस्टैंडिंग देयर म्यूजिक एंड आवर म्यूजिक एंड वर्किंग टुगेदर. देयर इज लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग. अभी डॉल्बी एटमॉस आया है. डॉल्बी एटमॉस इज द न्यू वे टू गो. मैं अभी भी बोलता रहूंगा यार ये डॉल्बी वॉल्बी क्या है, ये एटमॉस क्या है. आई जस्ट वांट टू लिसन पुराना ग्रामोफोन. अरे हाँ, वो भी आ रहा है वापस. दैट इज अनदर ट्रेंड. Vinyl is coming back. Gramophone तो वो जैसा पुराना, पीछे भी देखो आगे भी देखो ना. Correct. So there is a lot of scope in terms of how to apply classical music to the contemporary music and the different streams that are happening in India, in abroad. There's lots of collaborations possible. There's lots of things possible, but you have to have, like Purbanji said, you have to have respect for the other system also. When you are taking your system, you have to have respect for the other system also, and then only a good collaborative confluence can happen. Okay, there's one probably second last important question, which is about very basic thing. जो जिस क्वेश्चन के लिए शायद जो नए सुनने वाले जो पूरे सेशन में बैठे होंगे, जो अभी जस्ट जिनका म्यूजिक में रस खुला है और आए हैं, how can a music enthusiast,
हाउ कैन ही स्टार्ट देयर जर्नी इनटू म्यूजिक? एक आदमी है जिसको म्यूजिक अच्छा लगता है, नया नया अच्छा लगना शुरू हुआ है, और क्लासिकल म्यूजिक में जस्ट इनिशिएशन हो रहा है, क्या सुने वो, जैसे मुझे कई बार लोग पढ़ते हैं ना, सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट रीडिंग में है, लेकिन मैं क्या पढूं, मुझे पता नहीं, आप मुझे 10 किताबों के नाम दीजिए। अब ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है मेरे लिए आंसर करना, क्योंकि मैं कहूंगा आप दुनिया में लाखों करोड़ों किताबें हैं और आपकी रुचि किसमें मुझे नहीं पता, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट as a bridge between this generation of people who know music and people who don't know music, what would you like to suggest? Where do they start? How can they begin their journey in music, and So, how can they ये बहुत it's a very interesting question. It's a very important question also, because very often people are not exposed to things just for lack of information. आपने बहुत बात तो सही कही. Because see, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है इन चैंटिंग ओनली, हाँ, सेक्रेट चांट्स. किसी को शायद ओम और शंख की आवाज में इंटरेस्ट है, पर वो उसको मालूम ही नहीं ना कि इंडियन कल्चर में, इंडियन म्यूजिक में ये एग्जिस्ट करता है. या तो ध्रुपद जैसे मेडिटेटिव. किसी को इंटरेस्ट ऐसा हो सकता है कि कर्नाटिक रिदम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अक्षरा, हाउ दे स्प्लिट, हाउ तत तित तम नम, हाउ इट वर्क्स. तो बट उसको, उसके पास इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए. सो आई थिंक द बेस्ट एडवाइस वेन एवर पीपल आस्क मी अ क्वेश्चन लाइक दिस, कि आई रियली वांट टू, आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ योर म्यूजिक, एंड मैंने बहुत कम सुना है, कहा कैसे मैं घुसूं इसके अंदर. Okay. I always ask a reverse question. I ask them, what is it that you like about our music? Which element you like? आपको Hmm. टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है. तो कुछ लोग बोलते हैं कि आई लव हाउ मेडिटेटिव इट इज. तो मैं उसको तुरंत बोलता हूँ कि लिसन टू लाइक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उनका आलाप जोड़ सुनो. आप उधर से घुसो. तो आलाप जोड़ सुनेगा इंसान, तो बाद में गत भी तो सुनेगा ना, वो आलाप जोड़ में गत आएगा. तब सोचेगा, तब तो वो जाके सोचेगा, यार ये मेडिटेटिव जितना है उतना ही फन है, उतना ही वो तबला प्लेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना. Correct. जैसे मुझे कोई पूछा, इफ आई गो टू से, आई रिमेंबर आई हैड द ओकेजन टू मीट पैट मथीनी once, and I interacted with him, the great guitar player, multiple Grammy winner. So उन्होंने मुझे ये सवाल कहा था कि what do you like about jazz music? I said I love, about his music. मैं तो बहुत अनपढ़ था उस वक्त, because I didn't have much idea about jazz music. But मैंने उनको सिर्फ यही बोला कि the changing soundscapes, जैसे Pat Metheny is a very production. तो उन्होंने बोला learn 50 jazz standards. उसमें हार्मनी कैसे चेंज हो रहा है उसको स्टडी करो. My Funny Valentine, Take Five by Dave Brubeck. Fantastic. हाँ. हाँ, तो ये स्टडी करो. तो आपको कौन सा एलिमेंट अच्छा लगता है? किसी ने बोला मुझे परकसिव एलिमेंट बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो तबला सुनो, जाकिर साहब के तबला सुनो, या तो कर्नाटिक म्यूजिक सुनो, सेल्वा गणेश जी का कंजीरा सुनो, उसमें सुनो क्या रिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी है. तो ये सवाल करना बहुत जरूरी है कि विच एलिमेंट यू लाइक, एंड फ्रॉम दैट एलिमेंट यू विल सी दैट इंडिविजुअल, इफ ही इज ओपन, ही विल गेट इनटू अदर थिंग्स. ही विल स्लोली गेट इनटू अदर एलिमेंट्स, of the music. It has been a wonderful evening talking with you, Purvayan ji. But हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे. I would also want to know some trivia about your stories with the sitar and your learning or whatever. And if you could play something for us before I end, मतलब उतना तो सुन के ही हम जाएंगे. But this has been an eye-opening session. This has been a fantastic session. मतलब मैं तो चाहूंगा कि आपके साथ दोबारा हमारा इंटरेक्शन हो, दोबारा हम और भी बातें करें, क्योंकि ये तो मुश्किल से 8 या 9 सवाल हम पूछ पाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी सवाल. I'm sorry, I did a lot of the talking. I mean, I think I talked a lot out of turn, so I apologize for that. But it's been an equally enlightening session for me, and the pleasure is totally mutual. अरे नहीं, दिस इज योर सेशन, आपको ही बोलना था. मैं तो बस क्या बोलते हैं, जस्ट भर्ती के नमक के बराबर हूँ, आप ही आटा हैं. मैं नमक के बराबर ही ठीक हूँ. So it was great. I'm so humbled and I'm so happy to have had this opportunity to talk to you. बहुत मजा आया, और जरूर आगे इंटरेक्शन करेंगे. IPRS के लिए वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर दिस नो योर म्यूजिक इनिशिएटिव. और Again, I would like to remind our audience www.purbayan.com. बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप देखिए. और YouTube पे पुरबायन जी की बहुत कमाल वीडियोस हैं. Please go and explore his music. You will love it. And Purbayan ji, now last summing up is you talking and you playing. That's all. Ji. So I must tell you, this is the rag that most of us learn as a first rag, which is Yaman, which is called Kalyani in the Carnatic system, and Yaman Kalyan in the Hindustani system. The interesting thing is Yaman, this is an Arabic scale.
और मैं इसी में थोड़ा सा आई लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट द काइंड ऑफ genres this covers, this raga covers. So I'll play a few things, थोड़ा थोड़ा मतलब एक कुछ कुछ सेकंड करके. And I think I would love to leave the listeners with music only. We've already said our goodbyes and thanks, and my thanks to IPRS for having me on this platform, and I look forward to more and more interaction. Of course, I'm a member of IPRS, and since it's called Know Your Music, I think it's very relevant to our society and our culture, because we should know our music. Not only as a musician, as you said, the lines between the consumer and the creator have blurred. So it is better for the music if more and more of us learn how to be creators and consume the music according to how a creator would consume it. Like I am both. I'm a creator, but I'm also a consumer. भजन. श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव दारुणम. जी. वाह. भजन से आगे गजल. वाह, क्या बात है, गजल तक क्या आ बात. गए. उधर से क्लासिकल से हमने शुरुआत की थी. उधर से हम लोग फिल्म में आ जाएंगे. जो गाना मैंने ऑलरेडी बजा. हाँ. और ये तो हिम्मत के साथ क्या बजा बात सकते है, हैं, क्या क्योंकि बात है. ये आईपीआरएस के लिए क्या ही चीज. इंटरेक्शन है. तो आईपीआरएस मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे कम से कम रॉयल्टी कलेक्ट करने के. बहुत बहुत शुक्रिया पुरबायत जी. थैंक यू Thank you सर. so थैंक यू सो much. मच. It was such a wonderful evening with you, and I hope to see more of you as soon as possible. एब्सोल्युटली. Thank you all for joining in. एब्सोल्युटली. Thank you so much. Have a great day. Know your music.